good afternoon. I'm Dr. Monica Singh, and today we start our lecture session 2 on community organization and development. Yesterday I had explained to you the functions, the stages, and the definitions and what exactly is a community. So today we'll be doing the characteristics of community development, characteristics, elements, then characteristics, elements, indicators, then what is the difference between community organization and community development, and the models of community development. So that is required to be done. That was the part which was left. So when we talk about characteristics of community development, what exactly are the characteristics? Firstly, characteristics of community development is, the first characteristic is it focuses on the whole community rather than any one area or a group or a segment of population. So when you are talking about community organization, you are not just focusing on just one aspect, you are focusing on the whole community. Then comes, it concentrates on the overall development of the community and attends the needs of the whole community. Overall development, it's not just that a specific population will be addressed, it is overall development of the community and also the needs of the community, and any need is not attended in isolation. And third characteristics of community development is, it is always concerned with bringing about social change. When you are setting out to do community organization and development, you have to think about social change. Then the fourth characteristic is, it promotes a problem solving approach. The people in the community, they get tuned to सॉल्विंग देयर ओन प्रॉब्लम्स. जब एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें जो लोग हैं उनको ये आप एक डायरेक्शन देते हैं, आप एक उनको एक विज़न दिखाते हैं, उनको एक रियलाइजेशन होती है कि उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है, एंड द प्रॉब्लम इज़ देयर सो दे हैव टू सॉल्व इट. देन फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इज सेल्फ हेल्प एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन वॉट एवर मैनर दे कैन डू इट. सो सेल्फ हेल्प मतलब लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने खुद अपनी मदद करनी है. सेल्फ हेल्प, इफ़ दे हेल्प देमसेल्व्स सो कम्युनिटी विल चेंज, देयर विल बी डेवलपमेंट, देयर विल बी डेफिनेटली a better quality of life, and they have to participate. Nobody is going to come and do it for you. अगर कुछ भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लोगों को ये पार्टिसिपेशन, लोगों की जो अपनी पार्टिसिपेशन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Then community development usually involves the utilization of the local resources. जो community में local resources होती है उनकी utilization is very important, along with help from government. अगर कोई NGO काम कर रही है वहाँ पे तो उनके साथ में अगर in the form of funds, money, then कोई infrastructure facility दे दी, कुछ kind में दे दिया, कोई expertise दे दी. So this is the kind of help which is given. Then community development की जब हम बात करते हैं, that considers both task and goals and process goals. When we talk about goals, it is a process through which it goes, and इससे क्या होता है, the quality of participation, जो self direction and cooperation is there, that really improves. Then community development is an ongoing process. It is not just that आज हुआ कल ख़त्म हो गया. It is an ongoing process and not for a short period of time, because problems keep recurring, problems are there, individuals will have some kind of issues, so it is an ongoing process. If it's not health, it could be education, it could be some kind of economic problem, it could be some kind of political problem, so one or the other problem is there, so it's an ongoing process. Then community development is concerned about the felt needs. What are the felt needs? Felt needs are जो लोग महसूस करते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी नीड है, इसको हमें, ये ज़रूरतों को हमें पूरा करना है, इस ज़रूरत के लिए हमें एक्शन लेना है, कम्युनिटी एक्शन, विच इज़ नॉट फोर्स्ड. आप कम्युनिटी में एक्शन को फोर्स नहीं कर सकते, यू हैव टू मेक देम रियलाइज विद अ कॉमन कंसेंसस. ये नहीं कि 4 लोग येस कर रहे हैं कि हाँ एक्शन लेना चाहिए लेकिन बाकी मना कर रहे हैं. सो नो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और नो कम्युनिटी विल फ्लरिश, नो पॉजिटिव डेवलपमेंट विल बी देयर until and unless everybody reaches a consensus. सबकी सहमति से ही आप काम कर सकते हैं. और मैं बार बार कह रही हूँ कि कम्युनिटी में पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनकी प्रॉब्लम है, उनकी कम्युनिटी है, उनके नज़रिए से आपने देखना है,
उनको रियलाइज़ करवाना है कि यस आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आज आप उस कम्युनिटी में हेल्प कर रहे हैं, आज आप उस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक ही कम्युनिटी में नहीं रहेंगे, आपने मूव ऑन करना है, बिकॉज यू आर अ कम्युनिटी मोबिलाइजर, यू आर अ सोशल वर्कर। सो योर आइडिया और योर अप्रोच इज़ टू हेल्प अ होल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी, different kinds of communities. So you're not going to be sticking on to one community. So these were the characteristics of community organization. Now we come to the elements. Elements of community development process. जब हम बात करते हैं कि elements क्या हैं जो community development process को आगे what you say help करते हैं. So first is what exactly you think कि जब डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है तो उसके क्या क्या पार्ट्स हैं. सो फर्स्ट इज़ अ कम्युनिटी. कम्युनिटी हम किसको कहते हैं? कम्युनिटी एज अ होल इज़ अ यूनिट ऑफ एक्शन. यूनिट ऑफ एक्शन मीन्स वेयर द एक्शन हैज़ टू टेक प्लेस. एंड जो कम्युनिटी की डेफिनेशन है, दे हैव बीन वेरिड डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट पीपल, डिफरेंट sociologists, psychologists. Psychologists have thought related it to the behavior, then social workers, then many people have given different definitions. But you have to realize that community की जो geographical demarcation है और जो जो मतलब area है, it varies in size, people's occupation varies, religion varies, cultural जो उनका setup है that is different. So it explains that there are complexities in a system and variables which need to be intervened in any kind of community development process. So then second is second element is local initiatives and leadership. Local initiatives and leadership जो है, these are very important factors in the community development process. The issue is that जो local leadership है, they play a significant role. They know that उनके जो क्या उनकी problems है, they need to identify, and they are the best people who can identify. They are the ones who know कि किस तरह से इस पे काम किया जा सकता है, लेकिन एक्शन किस तरह लेना है वो आप डायरेक्शन उनको देंगे. एंड जो इसमें एक्चुअली व्हाट एक्चुअली इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. पीपल आर कमिंग एंड स्टैंडिंग देयर. आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आप कोई अवेयरनेस ड्राइव कर रहे हैं, दे जस्ट कमिंग एंड स्टैंडिंग देयर मीनिंगलेसली, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, इफ़ दे आर स्टैंडिंग देयर, they need to contribute, they need to tell, they need to understand that yes, they need to realize that yes, this is our community and we need to improvise it, we need to make it better. हमें इसको सुधारना है, हमें अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढना है. जब वो रियलाइजेशन हो जाएगी तो कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में लोगों का जो वो आपको सहयोग भी देंगे. देन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज़ द थर्ड एलिमेंट. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि जो कम्युनिटी में रिसोर्सेज हैं, इट कुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर, इट कुड बी मैन पावर, इट कुड बी एक्सपर्टाइज, वट एवर द रिसोर्सेज आर देयर, द लोकल एज वेल एज द आउटसाइड रिसोर्सेज जो है उनको ऑप्टिमम, उनको 100% यूज़ कीजिए. एंड आप उसको अगर जैसे सपोजिंग हम एग्जांपल लेते हैं कि एक विलेज है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, तो आपने ये देखना है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. आप उनको किसी तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं, सपोजिंग वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं. आप उनको बता सकते हैं कि वो अपना टाइम ज़ाया ना करें और किसी न किसी तरह का जिसमें इंटरेस्ट है आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देके, डायरेक्शन देके, और अगर वो किसी सपोजिंग वो किसी कैटेगरी या किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं जिसमें उनको सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है, तो आप उसके बारे में उनको अवेयरनेस दीजिए, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर ओन सम काइंड ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस. और उनको एक पुश, उनको एक मोटिवेशनल ड्राइव देंगे तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा. देन कम्स पार्टिसिपेशन. द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ पार्टिसिपेशन. जो कम्युनिटी वर्कर है, he or she should ensure that all individuals and groups participate, they get accommodated in the development process and their participation should be of immense use. मतलब कि उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो यूज़फुल होनी चाहिए. ये नहीं कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन कुछ उसका आउटपुट नहीं निकल रहा. सो दीज वर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस. सो वी कवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस. नाउ वी कम टू द इंडिकेटर्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट. What are the indicators? Any community development क्या है? Community development is a product of many elements.
which include change in thinking, cultural beliefs, traditions, etc. And there are certain indicators which can be used to show the levels of development and that offer wealth and welfare in a community. क्या हो सकता है? फर्स्ट इंडिकेटर इज़ इंक्रीज इन सोशल सर्विसेज, जैसे इंक्रीज सोशल सर्विसेज जैसे गुड हाउसिंग हो सकती है, हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है, क्लीन एनवायरनमेंट हो सकता है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो सकती है, सफिशेंट क्लीन एंड सफिशेंट ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है. सो दिस इज़ वन इंडिकेटर. Then second indicator is increase in income. Increase in income which enables the families to in a community to meet their needs. अगर income उनकी increase होगी, अगर उनकी आमदनी बढ़ेगी तो जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती है. So increase in income means economic development, economic upliftment उस community की है. Then decrease in infant and maternal mortality. मेटर्नल और इन्फेंट मोर्टालिटी क्या होता है? मेटर्नल और इन्फेंट मोर्टालिटी होता है कि एक माँ जो बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी मौत हो जाए किसी भी कारण से, सो वो उसके परसेंटेज या उसके नंबर में गिराव आना, उनकी जो डिक्रीज़ वो गिरना, वो नंबर गिरना, और बच्चे जो पैदा होने वक्त या पैदा होने के बाद 40 दिन में या 1 साल के अंदर अंदर जिनकी डेथ हो जाती है इन्फेंट्स, सो इन्फेंट मोर्टालिटी जो है उसमें उनका जो है नंबर कम होना, सो ये भी एक इंडिकेटर है. देन डिमांड फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी. डिमांड फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब जब आप एक कम्युनिटी में हम कम्युनिटी को डेवलप करते हैं तो जो उनको टेक्निकल नो हाउ अवेयरनेस जनरेट होती है, सब कुछ पता लगता है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो है डिमांड वो बढ़ती है. बिकॉज लोग रियलाइज़ करते हैं कि जो हम काम मैनुअल उससे इतने टाइम में करते थे, तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें रूरल एरिया की, कंबाइंस की बात करते हैं हम, जो वो फसल काटने के लिए मशीन्स और टेक्निकल और जो मैकेनाइज्ड वेज हैं, उससे जो है कम टाइम पे आप अपना काम कर सकते हैं और उसमें मतलब इट इज़ बेनिफिशियल. उससे ये है कि आपकी आउटपुट ज़्यादा होगी. देन यू टॉक अबाउट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबके माइंड में है. हर जगह पे जहाँ पे हम बात करते थे हम यही सुनते थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आपकी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उसको आप उनके लिए भी रिसोर्सेज बचा के रखिए. जो इसकी एक लेमैन की या एक रॉ डेफिनेशन है वो ये है, जो मतलब एक आम आदमी से पूछा जाए कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, तो वो ये कहेगा सस्टेनेबल यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट की जो हमारा एनवायरनमेंट है, वेदर इट इज़ नेचर, वेदर इट्स प्लांट्स, वेदर इट इज़ वाटर, वेदर जो भी एनवायरनमेंट के अंदर आता है उसको हम बचा के रखें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ कर सकें, उनके लिए भी काम आ सके. तो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट कि अगर एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा सो इट्स गुड फॉर एवरीबडी. देन इरेडिकेशन एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी. अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट के साथ कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ये शो करते हैं कि येस उस सोसाइटी में डेवलपमेंट हुई है, उस कम्युनिटी में डेवलपमेंट हुई है. तो उसमें क्या है? इरेडिकेशन, पॉवर्टी, गरीबी को बिल्कुल ख़त्म करना या उसको रिड्यूस होती है. तो सो दिस इज़ कि ये सारे जो है ये इंडिकेटर्स थे जो बात करते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो फोर्थ पार्ट आज का है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट दो डिफरेंट चीज़ें हैं. सो इनमें अंतर क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, वो आज हम आई टेल यू what is the underlying difference between two. कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मेथड ऑफ सोशल वर्क है और कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोग्राम है. इट इज़ प्लान टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज. देन इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन द एम्फोसिस इज़ ऑन अ प्रोसेस, कि एक प्रोसेस है उसको हम एम्फोसाइज करते हैं. बट जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो फोकस किस पे करता है? एंड में या गोल में. देन कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये नहीं कि आज है कल नहीं है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विदाउट एनी टाइम बाइंडिंग. एंड इसको अचीव करने के लिए आप अपनी पेस और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल के उस पर देख के आपका जो ये प्रोसेस चलता है. एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो टाइम बाउंड है एंड वन हैज़ टू टेक एक्शन विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम टू अचीव द गोल्स.
कि आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इसलिए इतने टाइम में आपने अपना जो जो एंड है, जो गोल अचीव करना है, वो इतने टाइम में करना है। ये नहीं कि एंडलेसली आप लगे हुए हैं एंड गोल अचीव ही नहीं हो रहा। सो इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक स्टिपुलेटेड टाइम, तो उससे आपका गोल अचीवमेंट इज़ वेरी, इट मेक्स इट ईजियर। देन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो, उस पर एम्फोसिस किस पे है, पीपल्स पार्टिसिपेशन पे। वेरस कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो बात करता है पीपल्स डेवलपमेंट की। देन कम्स देन द नेक्स्ट इज जो असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर है, अदर एजेंसी जो हैं वो NGOs हो गई है, और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो असिस्टेंस है, इट डज़ नॉट मैटर इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, बट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सटर्नल जो असिस्टेंस है, दैट्स अ मस्ट एंड इट इज़ कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। Then in community organization, people are involved in planning and executing the programs to solve their problems. कि जो जो वो प्लान करते हैं और प्रोग्राम्स को किस तरह से एक्सिक्यूट करना है टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, दैट इज़ देयर एम्फेसिस। लेकिन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सटर्नल एजेंसीज जो हैं वो प्लान करती हैं प्रोग्राम्स, और पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है दैट इज़ ऑप्शनल, दैट इज़ नॉट अ मस्ट कि आपने पीपल हैव टू पार्टिसिपेट। Then most important is community organization is universal to all the communities. It is not just ki for one or the other, it is universal to all the communities, but community development, it differs from community to community. सो एक कम्युनिटी बड़ी है, एक कम्युनिटी की नेचर अलग है, एक कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी एंड पीपल टू पीपल, एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर, नीड्स, सिचुएशंस जो भी हैं उनके हिसाब से वो चलता है। देन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, दे आर यूजुअली पीपल हु ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, दे आर कॉल्ड द सोशल चेंज एजेंट्स। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट में जो पर्सनल है, दे कैन बी फ्रॉम एनी प्रोफेशन, दे कैन बी प्रोफेशनल्स अदर देन सोशल वर्कर्स, and they can be economists, they can be sociologists, they can be experts from agriculture, animal husbandry, technology, IT sector. So they can be from any field. Okay, so with this we have finished now the characteristics of community. Then we have done elements, characteristics and indicators. Now we know that a community worker, when we talk about a community worker, we also know that when a community worker is there in a community, he works on different principles जो मैंने आपको कल बताए थे, और principles के साथ साथ there is a certain model, जो डिफरेंट मॉडल्स हैं जिस पे कम्युनिटी वर्कर काम करता है। सो दे आर एप्लीकेबल और दे आर हेल्पफुल फॉर द कम्युनिटी वर्कर टू बी वर्किंग इन द कम्युनिटी। सो देर आर 3 मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। जो 3 मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट इज़ द लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, सेकेंड इज़ द सोशल प्लानिंग मॉडल, एंड थर्ड इज़ द सोशल एक्शन मॉडल। Third is the social action model. So now I come to the first one, which is locality development model. Locality development model क्या है? वो एक सोच के presumption चलता है कि community change जो है वो optimal कब होगा, जब broad participation of a wide spectrum of people at the local community level in goal determination and action. कि जो locality development है उसमें क्या है, the process of community building. इसमें ये है फोकस, जो इसमें इस मॉडल में जो मेन फोकस है, इट इज़ ऑन द होल कम्युनिटी और ऑन अ पार्ट ऑफ इट। पूरी कम्युनिटी में फोकस रहता है या एक पार्ट ऑफ इट, एंड इसमें जो सोच है, इसमें जो बिलीफ है वो ये है कि कम्युनिटीज़ हैव सम कॉमन नीड्स एंड इंटरेस्ट, एंड वंस द पीपल रियलाइज द नीड्स एंड इंटरेस्ट, दे कम टुगेदर टू सॉल्व देम, सो टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड इस locality development model में this model is based on 5 elements which have been given by Dunham, D-U-N-H-A-M, Dunham. In 1970 he has given that 5 elements are there which are important in this locality development model. The first one is democratic procedures, second is voluntary cooperation, third is self-help, then fourth is development of local leadership, and the last is education. सो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इस पे बेस्ड है लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल,
एंड सेकेंड वाला जो मैंने बात की थी, सोशल प्लानिंग मॉडल। सोशल प्लानिंग मॉडल क्या है? सोशल प्लानिंग मॉडल जो है, इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, एंड इट्स मेन गोल जो है, इट इज़ टू अचीव द कम्युनिटी, अचीव एंड सॉल्व द कम्युनिटी प्रॉब्लम्स। और the emphasis on this is that it is a technical process and of problem solving with regard to social problems such as housing हो गई, health की हो गई, एजुकेशन की हो गई, किसी की कोई मॉनेटरी कोई प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई। सो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उस पर काम किया जाता है। और इसमें ये है कि आप डेटा कलेक्ट करते हैं। एक बार ये आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, वंस द डेटा इज कलेक्टेड, द एनालिसिस ऑफ द डेटा में बी डन बाय द वर्कर्स और प्रोफेशनल्स, एंड आप डिसीशंस जो हैं वो लिए जाते हैं किससे? प्रोफेशनल्स जो इश्यूज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सी इशू सबसे पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, जिसके लिए सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और जो फीलिंग ऑफ डोनर एंड रिसीवर इसमें आता है कि हाँ यस, कि डिपेंडेंसी जो है लोगों की वो आउटसाइडर्स पे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और जो इसमें जो मेन फोकस है उसमें जो कम्युनिटी वर्कर है, ही बेसिकली थिंक्स ऑफ बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ द पीपल एंड एम्पावरिंग द कम्युनिटी, कि अगर हम लोगों की कैपेसिटी जो है उसको बिल्ड करेंगे और लोगों को एम्पावर करेंगे तो डेवलपमेंट इज़ नॉट, और एम्पावर करेंगे तो क्या होगा, लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकेंगे। सो देन कम्स द लास्ट वन विच इज़ सोशल एक्शन मॉडल। अब सोशल एक्शन मॉडल जो है वो फोकस किस पे करता है? इट फोकसेस ऑन द रिव्यू ऑफ सोशल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस विच कंटिन्यू टू डिसएम्पावर एंड ऑप्रेस द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। कि जो सोशल पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, हमारी जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं आजकल, वो आज भी लोगों को इंस्टेड ऑफ उनको एम्पावर करना, उनको ताकतवर बनाना, उनको डिसएम्पावर करते हैं और अप्रेस करते हैं। जो लोग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जैसे कि गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, डिसेबल्ड हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, कई दिव्यांगजन हैं, तो मतलब जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, एल्डरली हैं, तो उनको क्या करना, उनको ऑप्रेस करना, उनको दबाना। और इसका जो इस मॉडल का मेन एम है टू अचीव सोशल प्रोग्रेस बाय मॉडिफाइंग द सोशल पॉलिसीज़। जो हमारी सोशल पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उनको मॉडिफाई करना, और मॉडिफाई करके जो सोशल लेजिस्लेशन और वेलफेयर सर्विसेज है, जहाँ जहाँ पे अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, जहाँ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, उनको मॉडिफाई करके हम कम्युनिटी को हेल्प करें। तो ये मॉडल इस पे बेस्ड है। सो विद दिस वी डन द मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ वी कम टू what are the approaches to community organization. There are जैसे मॉडल्स की बात करी, स्टेजेस की हमने कल बात करी थी, प्रिंसिपल्स की बात करी है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है, एलिमेंट्स की बात करी है, इंडिकेटर्स की बात करी है। सो देयर इज़ अ सर्टन अप्रोच ऑल्सो, कि जो अप्रोच हम किस तरह की अप्रोच अडॉप्ट करेंगे अगर हमने कम्युनिटी में काम करना है, कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना है। सो देयर आर 3 अप्रोचेस विच आर देयर in community organization. The first is the social work approach. जो social work approach है, इसमें जो main focus है, the main focus is on the whole society, and इसमें जो है the attention most जो है attention is paid towards building a sense of community. So ये जो है this approach was first used in USA during the social settlement movement and war on poverty alleviation programs in the 1960. इस अप्रोच में क्या है, जो कम्युनिटी वर्कर है, ही प्लेज द रोल ऑफ एन एनेबलर एंड एन एडवोकेट। सो ये 2 रोल्स प्ले किए जाते हैं सोशल वर्कर से। ही और शी हेल्प्स द कम्युनिटी इन आइडेंटिफाइंग देयर प्रॉब्लम्स एंड ट्राइज टू ओवरकम देम बाय गैदरिंग द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। जो भी कम्युनिटी में एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको गैदर करके, उनको इकट्ठा करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, एंड गेटिंग सम हेल्प फ्रॉम द पीपल हु आर इन पावर। और जो लोग पार में हैं उनकी मदद लेके कम्युनिटी में कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना। सो दिस इज़ द सोशल वर्क अप्रोच इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड कम्स द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच. Political activist approach is given by a very important person which is Saul Alinsky. Saul Alinsky जो है, उन्होंने इस कम्युनिटी के ये अप्रोच के, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ दिस अप्रोच, एंड जो फिलॉसफी है बिहाइंड दिस अप्रोच इज़
मोर द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्गर इज़ द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिप्रेजेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही स्ट्रॉन्गर होएगी। सो इन दिस अप्रोच Saul Alinsky, he looked at the community as a political entity. He said the community is a political entity, and he says that most of the problems in the community are due to unequal distribution of power and resources. कि अगर आप एक कम्युनिटी में कुछ लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं तो अगर आप उनको अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को दिया ही नहीं, किसी को कम दे दिया, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स वहीं से आएंगी, वहीं से अराइज करेंगी। एंड पावर इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। जो पावर है, जो लोग पावरफुल हैं इन द कम्युनिटी, वो कुछ लोगों के हाथ में है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी जो है इट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ इट। कि जो बहुत सारे लोग हैं दे आर नॉट पावरफुल, दे कांट एक्सरसाइज देयर पावर, दे कांट थ्रो देयर वेट अराउंड कि नहीं हम ये कर सकते हैं, हम कम्युनिटी में किसी से भी कुछ भी करवा लें। सो पावर जो है वो बहुत कम लोगों के हाथ में है। जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो उस पावर का यूटिलाइज को नहीं कर सकते। एंड सो फोकस इज़ ऑन गेनिंग द पावर। जो फोकस है वो पावर को गेन करने में है। उसको करने के लिए दे फेस कॉन्फ्लिक्ट। तो उसको गेन करने के लिए, गेन करने के समय बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं और ग्रुप्स के साथ होती हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जिनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। और जो कम्युनिटी वर्कर है वो ही और शी हैज़ टू हेल्प द पीपल दैट टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ पावर एंड हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो उनको इफ़ेक्ट करते हैं एंड हाउ दे आर डिनाइड देयर राइट्स। तो जो सोशल वर्कर है, जो कम्युनिटी वर्कर है, वो उनको रियलाइज़ करवाता है कि आपके जो ये प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ द पावर स्ट्रक्चर जो है वो आपके राइट्स आपको डिनाइड हैं। तो आपको एक कुछ ना कुछ ऐसे नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं या कुछ ऐसा एक्शन लेना है टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। एंड दिस अप्रोच हैज़ द पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग इक्वालिटी एज इट एम्फसाइज ऑन द राइट बेस्ड अप्रोच। तो इस अप्रोच के थ्रू आप एक सेंस ऑफ इक्वालिटी ला सकते हैं लोगों के अंदर, और इस अप्रोच को हम राइट बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। सो दिस वॉज द पोलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच, दिस इज द सेकेंड अप्रोच। द लास्ट वन इज़ द नेबरहुड मेंटेनेंस और द कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच। नेबरहुड मेंटेनेंस और द कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच, दिस इज द थर्ड अप्रोच। इस अप्रोच, ये जो अप्रोच है, ये अर्लियर टू अप्रोचेज जो मैंने बताई हैं, सोशल वर्क अप्रोच और पोलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच, इसका एक कॉम्बिनेशन है। एंड it uses peer group pressure to provide services in the community. So the strategy includes pressurizing the officials to deliver the services to the community. तो इसमें peer group pressure क्या है, जो आपके साथ रहने वाले हैं। अगर एक स्कूल है, स्कूल में peer group होता है जो साथ में बच्चे पढ़ते हैं। सो peer group pressure मतलब अगर साथ में पढ़ने वाले बच्चे, अगर कोई स्कूल में प्रॉब्लम है तो अगर वहाँ से बिल्ड किया जाए peer group pressure, तो व्हाट हैपन्स इज़ कि जो उससे क्या है, सर्विसेज, अगर कोई स्कूल में कुछ सर्विसेज नहीं मिल रही, कुछ समथिंग इज़ लैकिंग, सो पीयर ग्रुप प्रेशर built up on the school authorities can solve the problem and services can be attained. So same way in the society, the peer group जिनके साथ आप रहते हैं, आपके साथ रहने वाले, वो ये strategy use करके pressurizing the officials to deliver the services to the community. सो आप ये इस पर प्रेशर यूज़ करके आप जो सर्विसेज कम्युनिटी में देनी है उनको किया जाता है, मतलब उनको सर्विसेज को अवेल किया जाता है। सो विद दिस वी फिनिश the approaches to community organization. So we've covered almost everything in this community organization and development. And now I would just like to just briefly sum up the last part of community organization and development, which is the roles of a community worker. Community worker के अगर community में काम करना है तो उसके roles भी होते हैं। So एक community worker के different roles हैं। फर्स्ट इज़ एज अ गाइड, मतलब उसने कम्युनिटी को गाइड करना है, लोगों को गाइड करना है, उनको एक डायरेक्शन दिखानी है टू टेक डिसीशंस, उनका एक विजन वो करना है, उनको डिफरेंट एक्शंस लेने के लिए
फॉर डेवलपमेंट उनको इनिशिएट करना है. देन सेकंड इज़ इनिशिएटर. इनिशिएटर का मतलब है कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आप को कई बार बदलना ही नहीं चाहती, तो अगर उनको आप somebody tries to change them, वो उसको resist करेंगे. So a social worker in such a situation has to play the role of an initiator, कि नहीं आपने कभी ना कभी तो चेंज लाना है, कभी ना कभी तो आपने स्टार्ट करना है कि इनिशिएट करना है एक्शन. देन कम्स द थर्ड रोल दैट ऑफ एन एनेबलर. एनेबलर मतलब कि जो कम्युनिटी वर्कर है वो फैसिलिटेट करता है द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज and enabling the people to focus on the discontent. Then comes the role of a counselor. Counseling means at every step in the community, counseling जो है it is helpful, whether you are dealing with individuals, whether you are dealing with groups in the community, whether you are dealing with the power structure or you are dealing with the whole community. So counseling is very very important. Then motivator. Motivator is a role which is very important for any kind of community, any section of the society, जिसमें क्या है कि लोगों को मोटिवेट करना कि येस यू हैव टू कीप गोइंग. मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर वो इंटरेस्ट लूज़ करने लग जाएं, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उनको मोटिवेटेड रखना कि येस यू हैव टू डू इट. देन कम्स द रोल ऑफ एन एडवोकेट. एडवोकेट मतलब दिस रोल इज़ adopting social action model जो है of community development, accepting the whole community as a whole, and जो raising the issues, then representing और जो oppressed group है उनको उनकी जो problems है, underlying problems है, उनको कैसे address करना. Then comes the role of a mediator. It is very difficult in a community to come to a common consensus. Common consensus मतलब कि आप किस तरह से सारी community को एक platform पे लाके कि yes ये हमारे लिए सही है, we all agree to it. So a community organizer has to play the role of a mediator. Then comes as a innovator. Innovator क्या है कि community worker should have different innovative ideas, innovative methods, ताकि community interest ना lose करे, उनको लगे कि yes ये पुरानी वो नहीं है, this is a new thing which we need to do. So innovation is very important. Then collaborator and networker. So collaboration and networking is very important in a community, because when you are working in a community you need to collaborate with other organizations, you need to collaborate with the government, you need to collaborate with individuals. Then you have to network to increase your material resources, to increase your infrastructural resources, to bring about a change. So collaboration and networking go hand in hand. तो इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आपको करने की ज़रूरत है. तो expert, then you are जो community worker है, he should be an expert in providing the statistical data, research findings. अगर आपने किसी चीज़ पे community में research की है, आप technical experience उनसे share कीजिए, जो resource material आपके पास है, and then उनके जो discontent है उसको किस तरह से deal करना. Then sometimes people are not able to understand the root cause of their problems. So the community worker can act as an expert and a guide and help them to solve their problems or issues. Then the last role is that of an evaluator. The community worker should always be a good evaluator, without bringing any subjectivity, without bringing any. I mentioned yesterday also when we talked about evaluation in the stages of community organization. So I mentioned that without bringing any subjectivity, he or she should be able to evaluate the process of cooperative work. Ki yes, like this is the cooperative work which has been done, and this is for this is through interaction, through the cooperation of the people, and what is the effect on them. So and present these to the community that this is a collaborative teamwork which has been initiated. So while doing so, the roles played by the community worker, all the roles which I have explained, counselor, initiator, facilitator, innovator, so everything is coming together, and an efficient community worker adopts and adapts the role according to the changing situations. So according to the changing situations, you have to change yourself, you have to adapt to the situation,
and most of the time a community worker has to perform multiple roles. So to enhance the process of community development, आप एक रोल पे नहीं अड़े रह सकते कि नहीं मैं एक यही रोल काउंसलर का ही रोल प्ले कर रहा हूँ. अगर आप काउंसलर का रोल प्ले कर रहे हैं, साथ में आपको नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन भी करनी पड़ेगी. सो ऑल दीज रोल्स यू हैव टू प्ले. So with this we finish the subject of community organization and development, which is MSW 009 and BSWE 003. So we've covered all the topics which this subject has: definitions, community profiling, then stages of community organization, approaches, models, principles, objectives, characteristics, indicators, elements, then and the last one, role of a community organization or role of a community worker. So thank you so much. I hope this lecture was of use to you and it's been beneficial for your learning process. And thank you so much, and stay safe, take care, all the best.